We just got engaged. सिंगल होने वाला हूँ या तो वही शादी होने वाला हूँ। और बोलूँगा प्लीज मुझसे शादी कर लो। अरे येड़ी मतलब बोल रहा हूँ ऐसे आके। So I decided to cancel the whole proposal. और ये लड़कियाँ तो मेरे जान के ही पीछे पड़ गए थे। AC 21 पे गाइस फुल ठंडा आ रही है, पसीना देखो गाइस। इसकी चॉइस खराब है. वो शादी हम सब कर रहे हैं हम शायद। सबको हाँ बोलेंगे। बिल्कुल गलत हाथ में नहीं डालूंगा आज का। Not my तो फिर choice at मैं ही all. खत्म हो गया है गाइस स्पेशल ट्रीटमेंट। Hi everyone, welcome to our channel Pravleen and Rahul. नमस्ते। I am Pravleen And I am Rahul. and this is our new channel. We just got engaged because he proposed to me. ये आप लोग को I think अब तक पता होगा because if you're here, you of course follow us. But the main reason for this channel is that we wanted to vlog and do a lot more like cute couple stuff because we travel so much, we go to so many places to eat and do a lot of things. But after the proposal, हमें बहुत सारे requests आए to like give us more details about how it happened, what was the whole thing, कैसे हमने decide किया, बहुत सारे questions थे. But we're gonna keep this video strictly to the story time of the proposal. I was so scared ना कि मेरा इतना सिंपल प्रपोजल बहुत ही ऐसे अच्छा नहीं लगेगा सबको। सबसे ज्यादा उसको उसी चीज का आई डोंट नो लाइक ही विल टेक यू थ्रू ऑल ऑफ दैट बिकॉज हमने भी इन डिटेल उसके बारे में ऐसे बात इतनी की नहीं बट द रिस्पॉन्स दैट वी गॉट फ्रॉम द प्रपोजल वाज अमेजिंग। यस देयर वाज सो मेनी विशेस आई वाज शॉक्ड इन अ गुड वे या कि लोगों को इतना पसंद आ रहा है। like in 2 days we crossed 10 million views and the shares men in the comment section were just so sweet क्योंकि they were like men see men scroll men cry वैसे वाले जो हम Men like simple stuff। मैं बहुत खुश था कि सबको ये बहुत ऐसे सिंपल प्रपोजल इतना पसंद आ रहा है एंड पीपल आर लाइकिंग इट और कमेंट्स तो बहुत ही बढ़िया थे, तो मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला। यस that is true. हाँ. So that's why we decided that we'll do a story time. We'll take you through the planning, whatever he did. पूरा basically पूरे वीडियो के अंदर मैं से बैठ के सुनने वाली हूँ because पूरा ज्यादा कुछ है नहीं गाइस। पूरा is from his POV. But I'm going to keep on adding pictures, videos और जो भी उसे थोड़े बहुत snippets लिए हैं with help उसके हमारे friends ने उसको बहुत help किया in the whole process. So जो भी उसके पास bits and pieces थे, we thought that we'll put that while he explains the whole situation and we'll do बहुत डिटेल कुछ भी नहीं है बिकॉज आई एम नॉट यूज टू शूटिंग माई सेल्फ और जो भी अभी जो चालू किया है 5-6 अभी दिन उसको थोड़ा हैबिट नहीं है वो सीख प्रपोजल रहा का है. वीडियो वायरल होने के बाद थोड़ा बहुत ट्राई कर रहा हूँ, नहीं तो आई वाज आई नेवर यूज टू कम इन फ्रंट ऑफ कैमरा ओनली। मतलब और यूज द फोन टू कैप्चर अ वीडियो. आई नेवर टेक फोटोज आल्सो अनलेस एंड अंटिल कोई मुझे बुलाता नहीं है, तो वो स्टेट था। सो इतना डिटेल्ड वीडियो के साथ वो सब नहीं होगा, बट जो भी है मैं अभी आपको बता दूंगा। जितना सिंपल प्रपोजल था उतना ही सिंपल प्लानिंग था गाइस। सो yes, so yeah, basically this video is going to be all about that. If you want to know what exactly happened, how it happened, and you want to be a part of our journey, new journey before we get married, it's a new phase in our life and we're very very excited to share that with you. Yes. Please subscribe to the channel and hit the notification bell so every time we upload a video you get notified. And without any further ado, let's just jump right into the video. Basically we were best friends for 8 years and this proposal happened on 5th मैं डेट ही भूल गया 5th of March. Okay, so I am a Sikh and he is a Telugu and that was quite a shocker for my audience because आई एम फ्रॉम इंडिया। we are going to have a 2 states wedding. तेलुगु ये सब नो 2 states। आई एम फ्रॉम इंडिया। Yeah, I'm also from India. So it's going to be a lot of fun. So 8 years से हम best friends थे, but in the span of 8 years, उसमें से 4.5 years we were dating, and this Till is the time of proposal. yes, till the time of proposal, and now I'm officially a fiance and not a girlfriend anymore. So now he's going to take you through what exactly happened. तो प्रपोजल का पहले ऐसा था कि हम लोग की बात हुई थी कि आफ्टर एंगेजमेंट 6 months के बाद वील गेट मैरिड। सो वी प्लान्ड कि अप्रैल मई तक वील गेट एंगेज्ड एंड देन आफ्टर 6 months शादी कर लेंगे। तो प्रपोजल का बात निकला कि कौन तू करेगा। पहले इनिशियली शी वांटेड टू प्रपोज मी, बट फिर मैंने बोला नहीं यार, पहले ही रिलेशनशिप में ज़्यादा एफर्ट मुझे लगता है यही लेती है। तो मैंने बोला ये तो एटलीस्ट मैं करता हूँ करके। तो ये 2 साल पहले की बात है। देन अभी जब टाइम नजदीक आया तो शी आस्क्ड कि कभी
क्या है, मतलब कब करने आ रहे हैं, मुझे भी थोड़ा आइडिया दे, बिकॉज उसको नेल्स वेल सब प्रॉपर्ली रखने थे ताकि वो रिंग आएगा तो ऐसे अच्छा लगे। बिकॉज मुझे का कोई इशू नहीं था, आई ऑलवेज वांटेड टू प्रपोज एंड बी द पर्सन हु प्रपोजेस द गाय, बट मुझे ऐसा लगता सब यही कर रही है और मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। ऐसे कुछ भी नहीं है, बट ही जस्ट वांटेड टू बी द पर्सन हु वुड प्रपोज, बट मुझे बिल्कुल भी कुछ प्रॉब्लम नहीं था एंड आई वाज कंप्लीटली ओके। आई वाज लाइक तू मत कर, मैं करूंगी, बिकॉज ही इज समवन हु जस्ट गेट्स सो मच एंजाइटी एंड स्ट्रेस थिंकिंग अबाउट द प्रपोजल, लाइक last 3 months to 6 Anxiety and months stress, as in I don't like the spotlight. As in मैं इसको we are very ऐसे expressive और words of affirmation एक दूसरे को yeah we're very communicative. मुझे प्रबलीन को प्रपोज करना था, मैं इसके प्रबलीन के रिएक्शन के बारे में इतना वरीड नहीं था जितना मैं कैमरा चालू करूंगा, रिकॉर्ड करूंगा, इसको सरप्राइज कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ये ऐसे मैं कॉट हो जाऊंगा और लोगों के बीच में करना है या बाहर करना है, तो ऐसे स्टेज फियर है मुझे, तो मैं लोगों के सामने ज़्यादा ऐसे कर नहीं सकता। तो वो फिगर करते करते और बिकॉज जितना भी लोगों का प्रपोजल ये बताती थी वो ऐसे थोड़ा आउटडोर्स या ऐसे फैंसी लोकेशंस पे होता था, तो मुझे वो चीज़ का थोड़ा स्ट्रेस था। तो व्हेनेवर आई यूज्ड टू थिंक कि अभी क्या करूँ, कैसे करूँ, ये करूँ, वो करूँ, तो लेजिट मैं स्वेट करने लगता था जस्ट बिकॉज आई वॉज सो स्ट्रेस्ड और ऐसे थोड़ा एंशियस हो जाता था कि कैसे होगा, क्या होगा, पता नहीं, वीडियो अच्छा नहीं बना तो क्या, वंस इन अ लाइफ टाइम। एंड शी इज ऐसे, इट वाज नॉट इवन अबाउट द वीडियो, इट वाज जस्ट अबाउट कि उसको चाहिए था कि वो सब कुछ प्रॉपर एस्थेटिक। आई हैव अ फियर ऑफ डिसअपॉइंटिंग हर, तो मेरे को ऐसे बहुत ऐसे होता है कि मैं डिसअपॉइंट नहीं करूँ अच्छे से करूँ और बहुत गिल्ट ले लेता हूँ। तो मुझे ऐसे था कि दिस हैज टू गो परफेक्टली, हाँ, क्योंकि एक ही चांस है और फिर इसको वो भी नहीं पसंद कि अगर समझो मैंने गलती कर दी वीडियो बनाते वक्त या गलत एंगल में रख लिया या वो बराबर दिख नहीं रही वीडियो में, ऐसे कुछ भी हुआ तो भी वो स्पॉइल हो जाएगा। एंड देन उसको ऐसे वो फेक बिल्कुल नहीं पसंद, मतलब शी इज द वैसी है पर्सन, नो फिल्टर, मतलब उसको चाहिए ही नहीं कि हम लोग कुछ भी प्लान करके, एक फोटो भी मैं उसको बोलूँ कि प्लान करके प्रपोजल कर लेते तो बोली नहीं। मेरे लिए आइडियली वो अच्छा होता कि मैं इसको बोलता कि एक अच्छा फोटो ले लेते हैं, इसको मैं प्रपोजल कर देता घर पे एंड देन रिकॉर्ड करने के लिए मैं अच्छा करता, पर उसने क्लियरली बोल दिया कि नहीं भाई ऐसे नहीं करना है तो मत ही कर। तो मैंने बोला यार अभी तो ऐसे सोच के मुझे और स्ट्रेस आता था कि अब एक ही बार वीडियो रिकॉर्ड भी बराबर से हो जाना चाहिए और सब कुछ आ भी जाना चाहिए, उसका इमोशंस भी आना चाहिए, उसको अच्छा भी लगना चाहिए। इट वाज नॉट इवन अबाउट डूइंग इट आउटडोर्स या कुछ भी, मुझे सिर्फ था कि हम इन द मोस्ट सिंपलेस्ट वे, कुछ भी नहीं बोला था, ही डज इट, मतलब तू घर पे कर, तू कहीं पे भी कर, बट सिर्फ वो मोमेंट कैप्चर करने के लिए कैमरा रखना। बाकी मुझे कोई स्ट्रेटजी, लाइक आई नेवर वांटेड द होल लाइक शबैंग ऑफ हैविंग वीडियोग्राफर्स एंड ये और फोटोशूट करने के लिए ये सब मुझे कभी चाहिए नहीं था, ना मुझे वो पूरे इतना डेकोर और वो सब, ना मुझे वो सब इतना कुछ शौक है वो सब चीजों का। आई जस्ट वांटेड इट टू बी वेरी इंटिमेट, आई वांटेड इट टू बी लाइक जस्ट अबाउट द टू ऑफ अस और उसको स्ट्रेस ना हो। तो आई डिसाइडेड टू कैंसिल द होल प्रपोजल। नो पहले तो ये मेरे को स्ट्रेस देख के इसने वो फिर अचानक से बोल दिया कि इतना तुझे स्ट्रेस है बीइंग अ कंसिडरेट एंड गुड गर्लफ्रेंड, इसने तो सीधा ऐसे बोल दिया कि ठीक है तू इतना स्ट्रेस मत ले, कोई बात नहीं, प्रपोजल नहीं कर मत कर करके। तो फिर ऐसे तो बोल दिया, स्टार्टिंग में तो बहुत खुशी हुई मेरे को, फिर मैंने सोचा कि ऐसे नहीं करना चाहिए बिकॉज उसका एक ही बार लाइफ में ऐसे इवेंट है एंड बिकॉज उसको ये सब बहुत पसंद भी है, इमोशनल थिंग्स, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे को मेरे पार्टनर के लिए उतना तो एफर्ट आई कैन टेक। कैंसिल होने के बाद अकॉर्डिंग टू हर आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, वी विल जस्ट गेट एंगेज्ड फैमिलीज के साथ, जो भी रिचुअल्स के साथ, एंड शादी करेंगे करके। बट मैंने फिर मन में ऐसे मेरे को गिल्ट आया कि मैं इतना भी नहीं करूंगा तो फिर क्या मतलब। तो फिर मैंने सोचा कि कुछ तो करते हैं करके, और फिर आया रिंग वाला पार्ट कि रिंग इसको थोड़ा कितना अच्छा साइज का कुछ चाहिए था एंड शी इज़ वेरी 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 स्पेसिफिक अबाउट व्हाट शी लाइक्स। इसके ना कोई गर्लफ्रेंड जिसके लिए कोई थिंग्स पिक कर सकते हैं, ना कोई और, मतलब मैं तो बिल्कुल ही नहीं कर सकता। मैं जो भी मेरे को सही में अच्छा लगता है वो उसको बिल्कुल ही अच्छा ही लगता है। पर मेरी चॉइस अच्छी है गाइस। हाँ, इसकी चॉइस तो बहुत अच्छी है, सारे सब कुछ यही सिलेक्ट करती है। मेरा चूज करने में मैंने सिर्फ इसको चूज किया है, बाकी सब कुछ ये चूज करती है, मेरा उसमें जीरो, एंड आई ट्रस्ट हर। और उसका अच्छा भी होता है तो उसका सुनते हैं। तो रिंग वाले थिंग में मैं खुद से रिंग ले ही नहीं सकती, इतना पीछे क्या जा रही है भाई, मेरे को लगना चाहिए तो बाजू में जो भी। तो उसको रिंग चाहिए था ऐसे बहुत वे में, तो मैंने सोचा अभी मैं रिंग सिलेक्ट करके डायमंड रिंग वैसे भी तुम ले लो तो वो बहुत ही जल्दी क्या बोलते हैं डिप्रिशिएट हो जाता है। तो वो पॉइंट नहीं था वो लेके फिर अच्छा नहीं आया, पसंद नहीं आया तो सेल करके फिर दूसरा लेने में। तो मैंने सोचा ऐसी एक नॉर्मल सा एक रिंग ले लूंगा, नॉट द एक्चुअल रिंग, डायमंड नॉर्मल रिंग, मैंने जस्ट नॉर्मल अमेरिकन डायमंड का ऐसे उसने एक रिंग ले लिया। हाँ, मतलब प्रपोजल कर देते हैं और उसके बाद देखा जाएगा। तो इनिशियली प्रपोजल का प्लान्स, और निष्ठा एंड डॉली ये लोग बहुत ये थे कि प्रपोज करना है, एंड दे वर अ बिग सपोर्ट।
उन Because लोग the ने मेरे girls को are so excited. वो लोग हाँ, literally very, हम very पूरे excited. टाइम एक दूसरे को भेजते रहते थे कि हम ऐसे करेंगे तुम्हारी ये शादी, लोग हम ऐसे एकदम करेंगे. पकाव लोग हैं। सिर्फ ये लोग, ये तीनों लड़कियां सिर्फ शादी और प्रपोजल और आउटफिट्स और क्या पता नहीं, इनके 4-5 घंटे के कॉन्वर्सेशन में इन लोग सिर्फ यही बात करते हैं। Those are fun conversations. हाँ ठीक है, आए तो वैसे भी मेरा इंटरेस्ट लेके भी पॉइंट नहीं, बिकॉज दे वोंट कंसिडर माय चॉइस। तो ऐसे था, क्योंकि इसकी चॉइस खराब है, इसीलिए, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. दैट्स व्हाई डेटिंग हर। शट अप. तू ही मेरी चॉइस की अच्छी है ना, तूने बोला ना कि तेरी से मेरी चॉइस खराब है, मेरे को क्या, जो भी। एक्सेप्ट मी, बाकी तेरी चॉइस खराब है. हाँ तो जो भी, तो इन लोग ने डॉली निष्ठा बहुत मेरे पीछे लगे, कर कर कब कर रहा है, कब कर रहा है। मैं तो ऐसे, मैं इतना, बिकॉज वो फियर वाला थिंग तो था ही, ऐसे डर के वो वीडियो रिकॉर्ड करने वाला, तो मैं सिर्फ प्रोक्रास्टिनेट करता रहता था, अभी तभी रोज नेक्स्ट बोलता था, मैं भी कल वीक। करूंगा। और ये लड़कियां तो मेरे जान के ही पीछे पड़ गए थे, रोज मैसेज कब कर रहा है, आज कर रहा है, ये वीक तो करना ही पड़ेगा, और क्रेजी क्रेजी आइडियाज पिच कर रहे हैं कोई। और बीच में हम लोग का ऐसे पहले एक प्लान था कि सुबह व्हेन शी स्लीपिंग, मेरे पास इसके हाउस कीज है एक एक्स्ट्रा, तो उसके साथ आई वॉज गोना एंटर ब्रेकफास्ट उसके लिए प्रिपेयर करके, वहाँ पे मॉर्निंग में आई विल प्रपोज करके। दिस वॉज द फर्स्ट आइडिया, वेरी क्यूट आइडिया. क्यूट आइडिया था। बट फिर मैंने सोचा ये सुबह जिस हिसाब से सोती है मैडम, ये उठ के ऐसे, उठने के 15 मिनट तक तो इसको होश नहीं होता है, आंखें खुलती नहीं, इसको समझ में नहीं आता है। तो मैं बोला वीडियो बनाना है, ये ऐसे ऐसे कैसे तो आएगी सो के नींद में, क्या पता क्या रिएक्शन देगी, हाँ के जगह ना बोल दिया गलती से नींद में तो चलेगा नहीं। तो वो तो चीज़, फिर मैंने वो प्लान ड्रॉप किया। फिर हम लोग नांदेड़ जा रहे थे विद हर मॉम, बिकॉज आंटी जी को जाना था, तो उनको लेके जाना था, तो उनके साथ हम लोग जा रहे थे। नांदेड़ जो गुरुद्वारा है गुरुद्वारा, हजूर हाँ। साहिब में, हाँ। तो हम वहाँ पे साथ जा में रहे थे। तो फिर निष्ठा भी आ रही थी, निष्ठा में प्रवीण का ब्रदर गुरदीप एंड मम्मा. और मम्मी, तो हम लोग इतने लोग जा रहे थे नांदेड़। तो मैंने निष्ठा को बोला कि देखिए एक प्लान छोड़ के हम लोग गुरुद्वारा में भी, गुरुद्वारा मतलब गुरुद्वारा में नहीं, गुरुद्वारा के आजू बाजू आसपास premises कई में। प्रेमाइसेस में वहाँ पे प्रपोज कर दें। गुरुद्वारा विजिट भी ऐसे ऑस्पिशियस भी हो जाएगा, अच्छा भी लगेगा, एंड वेरी ऐसे इट्स नाइस, अ वेरी क्यूट आइडिया. क्यूट आइडिया था। और प्रबलीन ने बचपन में अपने, ये निष्ठा या डॉली किसी को, निष्ठा को बोला था शायद कि गुरुद्वारा में मैं कोई प्रपोज करेगा तो दैट विल बी वेरी नाइस एंड अभी आइडियल। बोला था लास्ट ईयर. अच्छा अभी बोला था, मुझे लगा तभी। नहीं अभी. ठीक है, तो जो भी, तो इसने अभी ऐसे बोला था, तो निष्ठा को याद आया कि हाँ प्रबलीन ने ऐसे बोला था, दैट विल बी अ गुड आइडिया। तो मैंने वो रिंग ले लिया, बॉक्स ले लिया। मैंने सोचा कि वो ये जवानी है दीवानी स्टाइल में चॉकलेट ऐसे बॉक्स देके चॉकलेट उसके अंदर रहेगा, एंड देन सिंपली मैं पूछ लूंगा। वो तेरा ही आइडिया था ना चॉकलेट हाँ वाला? वो मेरा आइडिया था, ये जवानी है दीवानी का थोड़ा इंस्पिरेशन He is लेके। a crazy Bollywood fanatic. वो सिर्फ ऐसे थोड़ा मैं प्ले करता है, यार- but every joke reference, every song, every movie from Imran Hashmi to इमरान हाशमी मत बोल बे। to Arijit Singh to Jubiन Nautiyal, everybody Songs. song से लेके हाँ। movie से लेके everything, like he is crazy Bollywood fan, हाँ, and so am मैं I. mostly- तो we bonded a lot on that, like ऐसे retro music और वो सब. तो मैंने ऐसा सोचा था कि मैं वहाँ पे अच्छा लोकेशन कोई देख के निष्ठा ऐसे फोटो के बहाने हम लोग का फोटो लेते रहेगी, तो उसी बहाने वो रिकॉर्ड भी हो जाएगा, और मैं ऐसे ही उसको देख के प्रपोज कर दूंगा, एंड शी विल बी हैप्पी। So this is cut to I think 4 or 5 days before the actual proposal, क्योंकि हम नांदेड़ में थे, so ये लोग का प्लानिंग चल रहा था, and then Nishtha was not ready, and then Nishtha was like I'll come, फिर ये लोग का on off हो रहा था, and then Nishtha came, and then this we're also going to show you the videos of when they were planning, okay, while they were there. वहाँ पे लोकेशन पे गए हम लोगों ने। फर्स्ट डे सोचा था हम लोग गुरुद्वारा जाते रहेंगे, वील डू आवर थिंग, एंड बीच में जब भी टाइम मिलेगा वहाँ पे एक वो रिवर के पास, मैंने बोला रिवर बैंक के आसपास कहीं करूंगा जहाँ पे अच्छा व्यू। तो व्यू पे जब गए 5-6 बज रहे थे, सनसेट हो रहा था, तो सन का जो एंगल था, अभी बैकग्राउंड में इफ वी वांट द रिवर, वो सन उसके पीछे ही था, तो लाइट के अगेंस्ट हम दिख ही नहीं रहे थे। और मैंने बोला ऐसे करूँगा प्रपोजल इसमें दिख भी नहीं रहे तो वो भी वेस्ट हो जाएगा करके। तो हम लोगों ने वो दिन फिर प्लान ही ड्रॉप कर दिया, क्योंकि लोकेशन और कोई था नहीं, बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी रिलीजियस प्लेस। वहाँ पे ऐसे कोई It's very strict also, Yeah, वहाँ पे and we rules and couldn't move regulations around हैं। इतना, like we had to like constantly cover our head, and वो तो चलो नॉर्मली रहता ही है, बट काफी स्ट्रिक्ट थे कि आप यहाँ पे बैठ नहीं सकते, आप यहाँ पे वैसे प्रॉपर रिलीजियस प्लेसेस पे हाँ। जैसा होता है वैसे ही था। अच्छा था, बट रिलीजियस It was very beautiful. वेरी ब्यूटीफुल प्लेसेस। बट फिर वही वो प्रपोजल थोड़ा रोमांटिक थिंग, तो वो ज्यादा रिलीजियस थिंग में ज्यादा सूट करता है नहीं. हाँ, तो जो भी, तो हमको मिल नहीं रहा था ऐसे अच्छा लोकेशन। फिर 1-2 जगह और देखे, बट नहीं हुआ। फिर वो दिन तो सनसेट ही हो गया, मतलब वो दिन नेक्स्ट डे ट्राई करेंगे। नेक्स्ट डे भी कुछ हो रहा था, फिर वापस से लोकेशन नहीं मिल रहा था। हम लोग का जो मूवमेंट ज़्यादा नहीं था, मतलब हम लोग जो लोकेशन पे जहाँ पे रुके थे वहाँ पे सिर्फ वॉकिंग डिस्टेंस में घूम रहे थे, तो लोकेशंस और व्यूज़ इतने कुछ चेंज हो नहीं रहे थे, क्योंकि हम लोग
गुरुद्वारा का ही थिंग्स करते जा रहे थे, तो कुछ भी न्यू लोकेशन था नहीं, वही वो रिवर वाला ही था, और वो भी इतना फिर अच्छा है। तो मैंने निष्ठा को बोला कि यार यहाँ पे छोड़ ही देते, मुंबई जाके देखेंगे, यहाँ पे ऐसे कुछ करके एकदम अच्छा नहीं करने से अच्छा विल प्लान समथिंग लेटर करके। वहाँ से आ गए, तो वहाँ से आने के बाद निष्ठा डॉली तो रोज ही पीछे ऐसे मतलब पीछे पड़े थे अच्छे वे में कि कर ले आज ही करना ही पड़ेगा तुझे, प्लान दिस दैट करके, एंड आई हैड नो क्लू कि अभी क्या, वो तो नांदेड़ का सोचा था, वो तो चला गया, अभी क्या करे YGHD टाइप्स। तो फिर ऐसे कर करके फिर बाद में सोचा था कि कुछ करेंगे घर पे ही प्लान करके, ऐसे करके फिर एक दिन क्या हुआ, ये अचानक से ना इस ट्यूसडे को 4 मार्च को अचानक से इसने बोला 11:30 को कि मैं जा रही हूँ अलीबाग कल सुबह। 4 को साक्षी ने मुझे कॉल करके बोला कि देयर इज एन इवेंट टुमारो एंड लाइक डू यू वांट टू गो, एंड इट वाज जस्ट लाइक अ वन डे थिंग, लाइक सुबह जाके शाम को वापस आ जाने वाली थी मैं बाय 7 o'clock, सो आई वाज लाइक ठीक है। तो सुबह मैं चली गई, एंड उसके बाद में what happened he'll tell you. This is the 5th of March, सुबह I am already in अलीबाग। तो ये अलीबाग चली गई, उसके बाद मैं ऐसे ही निष्ठा वापस से एज यूजुअल मॉर्निंग में डॉली और निष्ठा दोनों का मैसेज आ गया, कब कर रहा है प्रपोज, क्या कर रहा है। तो मैंने उन लोगों को बताया कि ऐसा ऐसा है, और तला को भी बताया था। तो ये अलीबाग गई है, क्या करना है, ऐसे करते करके मैंने एक ग्रुप बना दिया, और हाँ बस ऐसे ही था। तो उन्होंने बोला क्या बात कर रहा है, आज वो अलीबाग गई है, घर खाली है, वी कैन डेकोरेट पीछे से, एंड जब वो आएगी तो वो सरप्राइज हो जाएगी, और ऊपर से अच्छे आउटफिट में भी गई है, तो वो आउटफिट में ही आएगी तो अच्छा रहेगा करके। तो मैं बोला ये भी सही है, वो मॉर्निंग वाले में तो ये नाइट सूट में होती तो प्रॉपर नहीं आता वीडियो। तो मैंने सोचा हाँ वो रेडी होके भी गई है, रेडी होके वैसे ही आउटफिट में आएगी एंड अच्छा वीडियो बन सकता है करके। तो उसी दिन प्लान हुआ, वो भी थोड़ा कुछ 12-1 बजे ही हुआ था, और मुझे लगा कि इसको आते आते 9-10 बजेंगे, बट ये मैडम तो वो बताता हूँ। तो जो भी, तो मैं फिर 3-4 बजे लंच किया मैंने, फिर मैंने लोगों बोला ऐसा ऐसा है। तो निष्ठा हेल्प करने आ रही थी, तला का बेचारा वो रोज़ा रखा हुआ था उसने, तो उसका रोज़ा उसको घर पे ही खोलना था। तो वो पहले इनिशियली आने वाला था मेरे साथ प्रबलीन के घर, तो मैं पवे में था, वहाँ से मैंने फिर बाद में मैं आई एम जीरो ऑन क्रिएटिविटी पार्ट, ये वाला बहुत आई एम वेरी सिंपल, तो मुझे क्रिएटिविटी सब कुछ समझ में नहीं आता। तो वो सब चीज़ में मुझे गर्ल्स हेल्प करते कि डेकोर कैसा होना चाहिए, क्या केक होना चाहिए, क्या है, क्योंकि लोग सब पिंटरेस्ट वाले लोग हैं। तो निष्ठा ने मेरे को बताया ऐसे फ्लावर्स होने चाहिए, और ऐसे सेटअप करते हैं क्यूट सिंपल वे में कैंडल्स के साथ, और केक ऐसे रखते हैं, ये बहुत बढ़िया है, ऐसे करके मैं बोला चलो ठीक है। मतलब आई कैन, मुझे कोई बता दे कि ऐसे करना है, देन आई कैन एग्जीक्यूट इट, आई कैन नॉट डू द क्रिएटिव बिट, बिकॉज मैं वो जब भी ट्राई किया वो बहुत ही बड़ा फेल हो गया, किसी को पसंद नहीं आता है। तो निष्ठा डॉली ने ये सब बताया, वी अग्रीड ऑन इट। तो कैंडल्स लेने थे, फ्लावर्स लेने थे, केक लेना था, और रिंग लेना था। रिंग और बॉक्स मेरे पास था ही, एक लेयर वो जो चॉकलेट रखने वाला था वो भी मेरे पास था। तो अभी मेरे को सिर्फ ये थी। तो मैं फ्लावर्स लेने के लिए FNB में गया, शाउट आउट टू FNB, क्रेजी, उन लोग ने बहुत ब्यूटीफुल, बहुत अच्छे फ्लावर्स बनाए, जैसे मैंने उनको फोटो दिखा एग्जैक्टली वैसे बना के दिया। एंड चांदीवली में जो उनका स्टोर है दैट्स बहुत अच्छा है, मतलब वो जो भी He's actually very good with execution. Like we can just tell him कि ये चाहिए, फिर वो सब करके आ जाएगा। Exactly, I'll do it, मतलब without any hiccups। हाँ जो भी। तो फिर वहाँ पे मैंने एग्जैक्टली वो फ्लावर्स मिल गए मुझे, जैसे कैंडल्स चाहिए थे वो मिल गए, सब कुछ हो गया वहाँ से। देन तला वो सपोज टू कम विद मी फ्रॉम पवई टू कांदिवली, बट 5ish हो गया था, तो हम लोग पहुँचते 1 घंटे में। तो तला को मैंने बोला तो मतलब नहीं, क्योंकि रोज़ा तोड़ना, उसको रोज़ा खोलना जो था वो मम्मी के साथ खोलना था, तो 6:45 का था। तो मैं बोला पॉइंट नहीं है भाई, वापस आके यू स्टे, बाद में तुम आ जाना करके। तो मैंने निष्ठा को बोला कि निष्ठा तू आ जा, एंड डॉली वॉज एट ऑफिस, तो वो तो वैसे भी नहीं आ पाती। तो निष्ठा को बोला तू आ जा। तो निष्ठा और मैं यहाँ पे आए घर पे, हम लोगों ने सब सेटअप किया यहाँ पे। घर पे बहुत पसारा था, बहुत हॉल तो पूरा मतलब उसके सारे PR पैकेजेस पड़े हुए थे, अंदर घुस के चिड़ियाघर लग रहा था। बट फिर हमने सब कुछ ऐसे, और मैंने उसको प्रीवियस नाइट ही मैसेज किया था कि बेब लाइक मैं इतना ज्यादा, मुझे मेरा बैक एक इतना हो रहा था, बिकॉज आई फिनिश शूटिंग एट 2:30 इन द नाइट, एंड सुबह मैं निकल गई थी 7 बजे, और मेरे को इतना पसारा था, मेरे लाइट सब इधर पूरा वहाँ पे PR पैकेजेस, लाइक बहुत पसारा था। सो दे क्लीन्ड एवरीथिंग। हम लोग आए, मैं और निष्ठा देख के तो पहले 2 सेकंड शॉक हो गए। So there are a lot of clips also जहाँ पे you will see कि you know he and Nishtha they both are like setting it up, they are sending videos to Dolly to ask कि ये कौन अच्छा लग रहा है, ये कौन, we'll roll those videos. So guys, I am planning to propose Prableen today at her house. वो अलीबाग गई हुई है कोई शूट के लिए, तो I was thinking कि उसका घर जाके थोड़ा डेकोरेट करके उसको सरप्राइज करो when she is back. एक ये कॉर्नर है और एक ये है। What about this corner? This यहाँ पर रख के करेगा और कैसे करेगा, बट दिस कॉर्नर थोड़ा ब्लैक। अगर बोले साफ कर दिया तो भी साफ करेंगे तो हट एक बार यहाँ से। तो ये तो बोल रहा है कॉर्नर। Okay. Guys, I am very nervous because today I am proposing the love of my life, Prableen.
और सेटअप बताओ भाई। ये सेटअप Very किया है cute. सिंपल एंड क्यूट। ये वाला कैमरा बता। Okay, so ये कैमरा इज for her reaction. ऐसे मैं शर्ट चेंज करने आ रहा हूँ, ऐसे मैं बुके दूंगा उसको, फिर यहाँ से उसका हाथ पकड़ के लेके आऊँगा यहाँ तक, फिर से घुमा के बता क्या करेगा? डब्बा दूंगा और बोलूँगा प्लीज मुझसे शादी कर लो। एंड द सेकंड कैमरा विल बी योर। तो ये पूरा व्यू मिल जाएगा। और आप कुछ कहना चाहेंगे सर? और आई एम वेरी नर्वस। हाउ नर्वस आर यू ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10? एसी का टेम्परेचर दिखा पहले तो। एसी 21 पे गाइस, फुल ठंडा आ रही है, पसीना देखो गाइस। इतना नर्वस हूँ, उसको कोई स्केल नहीं बता सकता। और कुछ नहीं, आई होप शी सेज यस। डाउट है क्या? डाउट आया तो दोनों पैर पे गिड़गिड़ाऊंगा और क्या। ये बुके है गाइस, वेरी सो प्रिटी प्रॉब्लिन यार। लाइक्स रोजेस, सब सेम कलर के, तो इसलिए व्हाइट के साथ जा रहा हूँ। हर बार उसको रेड देता हूँ, बट प्रपोजल के लिए समथिंग डिफरेंट। एस्थेटिक मेंटेन किया है। ये घर बहुत ही गंदा था। नेक्स्ट टाइम मैंने मिलके साफ किया है। गंदा ऐसे गंदा नहीं था, अच्छा ही था। प्रॉब्लम गुस्सा आ जाएगी। वो सिर्फ पीआर पैकेजेस जो थे वो बाहर पड़े थे। बहुत सामान था ओवरली। तो बस हाँ, अभी थोड़ा सा बेटर है। राहुल ने बहुत मेहनत की है आज। हाँ, निष्ठा ने भी बहुत मेहनत की है, डॉली ने भी मेहनत की है, तारा ने भी मेहनत की है। कोई रहना चाहे? सबने ऐसे सब साथ में मिलके मेहनत करके सब साथ में आए हैं। जैसे कि यहाँ पे ये डॉली ने भेजा है, ये निष्ठा ने लाया, ये और ये तला मैंने लाया, और रोजेस लेते वक्त भी तला था। इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट। तो वो शादी हम सब कर रहे हैं हम शायद। सबको हाँ बोलेंगे। दिस इज माय आउटफिट गाइस, सिंपल अगेन एस्थेटिक, स्टिल वेरी नॉइस। शी इज ऑन द वे। या तो मैं सिंगल होने वाला हूँ या तो मेरी शादी होने वाली है। बहुत टांग आगे रखो, टांग पीछे रहना होता ना। ये मेरी एक पहली तो बार आगे। है, ये मेरी पहली बार है, मुझे कुछ नहीं आता। एक पीछे और एक आगे रहेगा ना। अरे येड़ी मतलब बोल रहा हूँ ऐसे आगे या इसको पीछे लेना। हाँ, आगे पीछे देना। हाँ, वो बोल रहा हूँ एक मार्किंग बता दो यहाँ, ठीक है? हाँ, सही मतलब है। ये जो इधर मेरा ये रहेगा, हाँ। पैर, ठीक है, ऐसे रहेगा। लेफ्ट लेग आगे रखना बोला तूने। हाँ, तो ये मार्किंग। वो वाला हाथ आगे कर एक बार। पर लेफ्ट ये हैंड भी से अच्छा काम हाँ नहीं ठीक है, करते। ये चलेगा। कैमरा सेट करके मैं हम लोग देख रहे थे कि निष्ठा बता रही थी कि ये यहाँ पे करना चाहिए, यहाँ पे करिए, वो करके। तो मैं चेक कर रहा था कि मैं अभी प्रपोज करने का, मैंने तो कभी इतना मैं ये सब थिंग्स को इतना ध्यान से नोटिस नहीं करता कि क्या कैसे हाउ टू गो ऑन योर नी एंड वो सब, ऐसे मैं कुछ कभी देखा ही नहीं है। तो मैं ऐसे वो सब भी मैं था कि ऐसे नी पे जाना है, कौन सा राइट नी आगे रखो, क्या लेफ्ट नी आगे रखो, वो सब वी वर फिगरिंग कि कैमरा में कौन सा हाथ से मैं रिंग दूंगा इसको, ऐसे सब करके वी वर डूइंग टाइम पास। तो जो भी, तो बहुत नर्वस था मैं, तो वो सब भी फिगर्ड। वी स्टार्टेड डेकोरेटिंग इट, मतलब एज एन डेकोरेशन बहुत ज़्यादा नहीं था, नॉर्मल कैंडल्स हम लोगों ने सेट किए, क्लीन किया, थोड़ा केक वेक रखा। वी वो जस्ट सीइंग कि क्या अच्छा लग रहा है, ये फ्रेम अच्छा लग रहा है। और वो एक एंट्री में जहाँ पे घर पे रूम में आने वाली थी, हॉल में टुवर्ड्स द डोर, एक मेरे पास 2 फोन है, तो एक फ़ोन को मैंने वो एंगल में रखा था टुवर्ड्स द डोर, एंड एक फ़ोन को ये प्रपोजल वाले कॉर्नर में रखा था जहाँ पे वी प्लान्ड वो एंगल में रखा था। तो एक तो फ्लावर्स मेरे को दे रहे थे व्हेन शी एंटर्स, और हम लोग दोनों ने, मतलब मैंने इसको एक सॉन्ग बहुत पहले डेडिकेट किया था, तो वो मुझे रब मन्या करके एक सॉन्ग है, हम लोग दोनों को बहुत पसंद है। तो जो भी, तो वो सॉन्ग मुझे ऐसे बैकग्राउंड में स्लोली प्ले करना था व्हेन आई प्रपोज हर। It was so cold and he was sweating, like he was sweating so much. वो वीडियो के अंदर भी वो ही sweating, when he was proposing तभी भी he was sweating. प्रपोजल के बाद मेरा स्वेट गायब हो गया। आई वॉज हैप्पी। जो भी, तो ऐसे हुआ, तो बहुत ही ऐसे हम लोगों ने सब सेटअप किया, निष्ठा ने बहुत हेल्प किया, और डॉली ने, फिर कैंडल्स नहीं थे तो डॉली ने ब्लिंकिट से भेजे कैंडल्स वहाँ पे, फिर फ्लावर्स और केक अरेंज कर दिया, केक निष्ठा ने अरेंज किया, फिर हम लोग जाके केक लेके आए वहाँ पे। वो तला सब हुआ। फ्लावर्स लेके आया। तला और मैं साथ में ही गए थे, बट तला Flowers वाज देयर, वो फ्लावर्स वाला थिंग करने के लिए। तो ऐसे सब करके हम लोग का सब रेडी हो गया। अभी नाउ वो सब होने के बाद अभी आई वाज फिगरिंग कि क्या करना क्या है। वो आएगी तो फ्लावर्स दूंगा, फिर गाना बैकग्राउंड में प्ले करूंगा, उसके बाद ये यहाँ पे लेके आऊँगा, यहाँ पे आई प्रपोज जो भी YJHD स्टाइल में। और वो सब थोड़े बहुत डायलॉग्स भी मुझे ऐसे था कि वो बोलने, बट ये खुद से ऑब्वियसली वो नहीं बोल पाई। मतलब वो जो था कि ड्रिंक नकली, वो तो खुद से वो टेक्निकली बोलना चाहिए था, बट वो मैंने इससे बुलवा जबरदस्ती बुलवाया,
ताकि मैं ऐसे बोल पाऊँ। तो जो भी वो सब प्लान था, उसके बाद मैंने सोचा कि ऐसे 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 प्रपोज करूंगा। फिर आई वाज वेटिंग इंस्टा गई, फिर मेरे पास इसका अभी शेयर लोकेशन, Live location. आईफोन पे फाइंड माई पे हम लोग सब लोग कनेक्टेड है, तो लोकेशन इसका देख लिया। शी वाज रीचिंग इन 5-10 मिनट्स एंड मैंने इंस्टा को बोला तू जा अभी, एंड मैं ऐसे फुल दोनों जगह कैमरा ऑन किया एंड आई वाज रेडी, और मैं ऐसे शिवर हो रहा हूँ, स्वेट कर रहा हूँ, ये वो अब आएगी कब आएगी, और ये आई नहीं रही है, पता नहीं क्या, मतलब तभी का टाइम वाज टू लॉन्ग फॉर वेटिंग। एंड वी बेसिकली वहां से व्हेन आई लेफ्ट वी वर सपोज्ड टू कम बैक इन द फेरी, बट हम लोग को रैंडमली एक कोई टीम मिल गई हु वाज कमिंग बैक बाय अ स्पीड बोट। सो आई थॉट चलो स्पीड बोट पे चले जाते हैं, तो दे डिड नॉट इवन 9-10 बजे आने वाली, सीधा 6-7 बजे आ गई। एंड मेरे को इतना, बिकॉज पूरा जो इवेंट था दैट वाज इन डे लाइट एंड इट वाज सच अ ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी, बट इतनी धूप थी वहां पे कि मुझे एक्सट्रीम हेडेक होने लग गया। एंड आई हैव माइग्रेन, तो मैं इतना धूप में नहीं रह सकती, तो मुझे इतना हेडेक हुआ कि आई रिमूव्ड माई लेंसेज, आई रिमूव्ड माई लेंसेज, आई ओपन माई हेयर। मैंने एकदम टाइट स्लिक बैक पोनी की हुई थी, मैंने अपना पूरा मतलब मेकअप भी ऑलमोस्ट गया हुआ था, मेरी पूरी हालत ही नहीं थी कि टू यू नो इवन do anything. I just wanted to come back home and crash. And literally I was with Janvi, who is also a creator, Janvi Bhatia, and I was telling her on the way back कि you know I think मुझे उसको propose कर देना चाहिए. Like I was telling her because मैं उसको बहुत टाइम बाद नहीं हो पाएगा। हाँ, मैंने उसको बोला उससे नहीं हो पाएगा, he gets very very stressed and मुझे चाहिए कि मैं propose करूँ, so I will propose. She's dropped me मेरे घर, like मतलब I dropped her on the way and I've come back home और मैं डेड हूँ, लाइक मेरे बाल कैसे, तो भी मेरे झोला वो पकड़ के मैं बैठी हूँ एंड मैंने चश्मा पहना हुआ है और मेरे को इतना हेड है कि मैंने सर पे बाम लगाया हुआ था और मैं वैसे ही एंटर हुई हूँ एंड आई एम जस्ट एकदम मैं लैग में चली गई कि ये क्या चालू है। आई जस्ट थॉट दैट फर्स्ट और भी सरप्राइज इसलिए था क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल रिंग था नहीं, रिंग हमने खरीदा नहीं था और हम लोग का प्लान था कि वो खुद पिक करने वाली रिंग, तो आई थॉट दैट रिंग नहीं तो ही विल नॉट प्रपोज प्रपोज। कहाँ से होगा बिना रिंग के। और दूसरा, और ये मैंने इसको बोला था कि इवन इफ आई प्रपोज वो उसके बर्थडे के बाद होगा, March 12th के बाद, बट दैट वाज March 5th, तो उसको तो बिल्कुल ही आइडिया नहीं था कि आज ही होगा करके, तो शी वाज एक्चुअली सरप्राइज्ड, दैट वाज नाइस। आई वाज शॉक्ड, नॉट सरप्राइज्ड, लाइक that is what actually was there in the video also। सबसे ज्यादा सबको लग रहा था कि oh my god, like just look at her, she's numb and she's quiet because actual में I didn't know कि क्या चालू है, और एक सेकंड में मुझे ऐसे रियलाइज हुआ कि this is happening, like वो जो तेरा इसलिए तो सबको इतना पसंद आ रहा है, वो 11.5 मिलियन जो भी व्यूज है हमारे, वो सब इसके रिएक्शन की वजह से। फर्स्ट जब उसने मुझे से बोला भी, मैं लिटरली एक स्टेप पीछे गई हूँ, like I don't know if मैं तो डर गया भाई, नहीं क्या पीछे जा रही है, ये भाग ना जाए। No, I was very, very, very shocked. But it जो was भी so है। beautiful and so simple, like exactly how I wanted it to be. I wanted it to be very intimate, very, ऐसे just emotions, like just. हाँ, और मुझे ऐसे था कि मैं सिर्फ रिकॉर्ड कर लूँ। इनिशियली हम लोग पब्लिक जाने वाले नहीं थे उसके बारे में, इट वाज जस्ट फॉर अ मेमोरी। मैंने तो ऐसे ही सोचा था कि इट्स जस्ट फॉर अ मेमोरी। मैं तो अपने फ्रेंड्स के सामने भी कॉन्शियस होता हूँ करके मैंने उनको भी बुलाया नहीं, कुछ नहीं। मैं आई थॉट कि प्रपोजल कर देते, वो हाँ बोल दी कि उसके बाद रात को सेलिब्रेट करने के लिए सब फ्रेंड्स को बुला लेंगे। दिस वाज द इनिशियल थॉट, तो मैं रिकॉर्ड तो कर लेता फॉर मेमोरी करके, बट उसके जो 2 फोन्स है वो दोनों फोन्स काम आए फॉर द फर्स्ट टाइम। काम हमेशा ही आते दोनों phones। तो ऐसे था, तो मैं आई वाज वेरी नर्वस। फिर फाइनली ये आई, तो मेरे को ऐसे हड़बड़ी में जो भी मैंने प्लान किया था सब एकदम वो Fast एग्जाम pace में हो होता है गया। ना, ब्लैंक हो जाते हैं सब पढ़ के, सब साथ में ही आ गए थॉट्स। तो मैंने उसको फ्लास्क दिया और उसको लेके आया। जो मैंने सोचा था कि मैं उसको ऐसे उल्टा होके नहीं लेके आऊंगा, मैंने वैसे ही लेके आया। जो भी मैंने प्लान किया था कि मैं नहीं करूंगा, मैंने वो फकअप कर दिया। ट्रू। मैंने उसको उल्टा ही लेके आ गया। जैसे वो वीडियो में आपको दिखेगा कि मैं जो पहले प्रैक्टिस कर रहा हूँ वो सब मैंने कुछ नहीं किया गाइस। उसको मैंने झोला, मेरा बैग में वैसे मैंने ही उसका पकड़ के खड़ी बैग हूँ। उतारने का टाइम नहीं दिया, मैंने सोचा ही नहीं वो कैमरा में गए। मेरे को ऐसा था कि कैमरा चालू है, वो आए और मेरे अभी को दे दो बस। मैंने फ्लास्क दिए, उसको खींच के लेके जाया, लोकेशन पे खड़ा रखा, उसको हाथ में वो बॉक्स दिया चॉकलेट जिसके अंदर था, वो खोल के हंसी। उसके बाद मैंने बोला प्रपोज कर देता। मैंने इसको तो फिर ये जवानी में इनिशियली सब लोग विल यू मैरी मी बोलते हैं ना, उसमें ऐसा था मुझसे शादी करेगी ऐसे करके वो रणबीर कपूर इसको दीपिका को बोलता है। तो मैं तो यही बोलने वाला था कि निष्ठा को मैंने ये बोला था कि मुझसे शादी करेगी बोलूंगा, पर मैंने उधर भी फकअप किया। मैंने बोला विल यू मैरी मी, फिर मेरे को याद आया कि अरे ये तो नहीं बोला। उसके तुरंत बाद मैंने रील देखोगे तो समझेगा, विल यू मैरी मी बोला, फिर मैंने शादी करेगी मुझसे भी बोल दिया कि दोनों भी हो जाए, तो दोनों बोल देता। वो बोला, वो सब होने के बाद फिर और एक फकअप क्या हुआ कि मैं ऐसे बैठा हुआ, आई वाज इतना ब्लैंक। ये मुझे लेफ्ट हैंड ही दे रही थी, टेक्निकली लेफ्ट हैंड के रिंग फिंगर में पहनाया जाता है रिंग,
और मेरे ये हाथ में मतलब- फोन है तो मैं आई एम जस्ट फंबलिंग कि मेरा कौन से हाथ से वो भी वीडियो में देखने मिलेगा। तो ये लेफ्ट हैंड मुझे दे रही है और मेरे को लग रहा है, मैं ऐसे बैठा हूँ तो मैं अपने राइट साइड को समझ रहा हूँ कि ये राइट हैंड है, और मैं सोच रहा हूँ कि इसका लेफ्ट हैंड मेरे लेफ्ट में है। तभी मैं इतना ऐसे लॉस्ट था। तो मैं ये लेफ्ट हैंड दे रही है और मैं इसको बोल रहा हूँ, इसके राइट हैंड को इशारा करके बोल रहा हूँ लेफ्ट हैंड दे। वो वाला हाथ दे रही है, बार बार वो दे रही है। मैं बोला गलत हाथ में नहीं डालूंगा, बिल्कुल गलत हाथ में नहीं डालूंगा, आज ये गलती नहीं करूंगा करके मैं बोल रहा हूँ ये नहीं, ये हाथ दे, ये हाथ दे। सब पहना के हो गया। और वो भी बेचारी दे लेफ्ट ही सही रही है, और मैं बोल भी रहा हूँ लेफ्ट, वो दे भी लेफ्ट रही है। और वो भी इतना लॉस्ट है कि मैं उसको ऐसे ऐसे इशारा कर रहा हूँ लेफ्ट कॉन्फिडेंस में कि लेफ्ट हैंड दे, लेफ्ट हैंड। वो फिर बाद में बेचारी ने मेरे कॉन्फिडेंस में आके राइट हैंड ही दिया और मैंने पहना दिया। और मैं एकदम चौड़ में, भाई मैंने गलत हाथ में नहीं पहनाया है, मैंने तो लेफ्ट हैंड में ही पहना है, राइट हैंड में नहीं पहना है। ऐसे करके मैं एकदम खुश। फिर वो हो गया। फिर उसका रिएक्शन तो आपने देखा, अच्छा रिएक्शन था। उसके बाद फिर वो नकली वाला था कि वो ऐसे बोलेगी कि ये रिंग नकली है, तो मैं बोलूंगा मेरा प्यार असली। तो मैं बोला ये तो बोल भी नहीं रही, कुछ देख नहीं, रोए जा रही है। तो मैं बोला क्या करूं, बोला रिंग देख, रिंग तो देख, क्यूट है, नकली है, नकली है। ये प्यार असली है। सॉरी यार, पैसे नहीं थे। तो रिंग देख के मेरे को लगा बोलेगी, अब बोलेगी नकली है। इसने बोला क्यूट है। तो फिर मैंने बोला मैं ही बोल देता हूँ नकली है ना। तो उसने बोला हाँ नकली है। तो मैंने बोला मेरा प्यार असली है बेबी करके। तो मेरे को वो करना ही था, तो वो मैंने किया। उसके बाद और क्या था, बस उतना ही था। एंड देन उसने मेरे लिए केक भी लाया था, केक लाया था, हाँ उसमें भी वैसे केक खिलाता है बनी उसको। एंड देन दे ओपन शैंपेन या वाइन, तो वो भी था ऐसे। तो वो सब करके YJHD इंस्पायर्ड प्रपोजल करना था, तो वो सब हो गया। वो भी मैंने घाई में किया, वो हो गया। उसके बाद मैंने अचानक से बोला चल केक खाते हैं। अब वो भी है, वेरी क्यूट। आई थिंक सबको सबसे ज्यादा क्यूट वन ऑफ द मोमेंट्स वाज दैट कि चल केक खाते हैं। दैट वाज अ वेरी बेस्ट फ्रेंड थिंग टू डू। यूजुअली थिंग्स आर सो स्क्रिप्टेड एंड सो लाइक ऐसे नॉट सो स्क्रिप्टेड नहीं होता, बट यूजुअली सब like लोग very एक mindset टिपिकल वे से जाते है हैं, कि हाँ, हाँ कि ऐसे ये करना है, फिर ये ये होता है करना है, फिर ये प्रपोजल करना है, करके। पर तभी बिकॉज आई वाज लॉस्ट, everything just happened ऐसे free एकदम flow। रॉ हो गया। और हो गया मतलब गलती से आई डिड द राइट थिंग्स भी नहीं बोल सकते, गलती से आई डिड अ फ्यू थिंग्स जो क्यूट हो गए। तो हम लोगों ने फिर एक दूसरे को केक खिलाया। एक दूसरे को भी नहीं, मैंने इसको खिलाया केक। चल केक खाते बोल के, ये मेरे को केक भी नहीं खिला रही है, रोए जा रही है अपने रूम में। फिर मैं वाइन भी लिया, मैं बोला चीयर्स टू यू सेइंग यस, चीयर्स टू मी प्रपोजिंग टू यू एंड टू यू सेइंग यस, एंड टू यू सेइंग यस करके चीयर्स करके पिया। उसके बाद फिर आई वाज फिर मैं बहुत रिलैक्स ही हो गया कि अभी हो गया। और फिर मैं ऐसे थोड़ा चिल हो गया कि चल यार आई एम डन। फिर वो भी खुश थी बहुत, तो आई वाज हैप्पी कि वो पूछा भी मैंने डिड आई सरप्राइज यू करके। तो वो दैट वाज द बिगेस्ट, मैं जो बोला मुझे फियर था ऑफ डिसअपॉइंटिंग हर, वो हो गया था कि हाँ वो सरप्राइज भी हो गई, मैंने अच्छे से प्रपोज भी कर दिया। एंड शी इज हैप्पी ऑल्सो, खुशी के आंसू रो रही है इतना, शी वाज इतना हैप्पी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ठीक है जो भी हुआ है अच्छा ही हुआ है, क्योंकि शी इज हैप्पी। ये खुश थी, ये सरप्राइज हो गई थी, शी सेड यस। मैंने जो इतना टाइम से सोच रहा था कि प्रपोजल करना है वो मैंने कर भी दिया था। एंड फाइनली मतलब आई डिड द थिंग व्हिच वाज नॉट गोना हैपन अकॉर्डिंग टू हर। एंड फाइनली वो हो गया। तो मुझे था कि चल लाइफ में शी विल ऑलवेज रिमेंबर दिस मोमेंट। तो आई वाज वेरी 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 हैप्पी। Yeah, I was also very 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 देन happy. फिर वो वीडियो हुआ, तो फिर शी वांटेड टू इन्फॉर्म एवरीवन, सब घर वालों को वीडियो कॉल किया, फ्रेंड्स को वीडियो कॉल किया, Because सबको पेरेंट्स को inform हमने किया। थोड़ा सा आइडिया दे दिया था, मतलब एंड शी पेरेंट्स बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर, ये सबका रिएक्शन रिकॉर्ड करना चाहती थी। मुझे चाहिए था कि मैं सबका और रिएक्शन इसका लिस्ट खत्म ही नहीं हो रहा था। और मैं ऑलरेडी इतना प्रेशर लेके, इतने पसीने, अभी तो रिलैक्स हो चुका था, तो अभी थोड़ी कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। हाँ, मैंने सबको problem कॉल तो नहीं। किया, सबका रिएक्शन लिया, फिर and वो then everyone पूरा was डे very बहुत happy. अच्छा। फिर And सारे then सब निष्ठा और friends डॉली किया। ये लोग तो कॉल पे कॉल किए जा रहे, प्रपोजल खत्म नहीं हुआ और उनका कॉल पे कॉल आ रहा है कि हुआ क्या, बिकॉज दे वर वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी फॉर मी, फॉर अस। तो और प्रॉब्लिन का रिएक्शन के लिए तो वो लोग ऐसे बहुत ही ईगरली वेट कर रहे थे कि क्या कैसे रिएक्ट करेगी, कैसे था ये वो। तो रो रही है क्या, सर्दी हो गई देखो? मैं भी ठंडी हो जैसे। ओ लॉर्ड, मैं बोला अभी भी इतना कौन रो, इमोशनल हो सकता है? नहीं जो भी। तो फिर ऐसे था। तो फिर बाद में मैंने सबको बोला कि आओ घर पे करके, घर पे आने के बाद फिर जो भी रिकॉर्डेड था कि बिफोर प्रपोजल के जो भी मैंने और निष्ठा ने भी रिकॉर्ड किए थे प्रैक्टिस करते सब भी वक्त, डाले, वो दिखाए सब भी सबको। दिखाया सबको। तो वैसे मजा ही सब हंसे वैसे। तो दिस वाज द प्रपोजल वाला थिंग एंड फाइनली हो गया। सो आई एम रिलैक्स नाउ। अभी कुछ टेंशन नहीं, एंगेजमेंट करेंगे वो सब। अभी सब डिपार्टमेंट इसका, मम्मी का, इसके मॉम का, हम दोनों के फैमिलीज का। मुझे तो कुछ इसमें है ही नहीं, मेरे को आउटफिट मिलेगा
मैं पहन के सिर्फ जाना है, रिचुअल्स करने हैं, दैट्स इट। अभी मुझे सिर्फ एक ही स्ट्रेस है, स्टेज फियर ऑफ परफॉर्मिंग ऑन माय संगीत। वो भी मुझे लगता है कि उसके लिए भी कुछ करना पड़ेगा, पर ठीक है, हो जाएगा वो। But basically, that was the story time. That is how he proposed to me, and I said yes. अभी ये बोलने के बाद भी मुझे रिलैक्स फील हो रहा है। So this is the ring. मैंने अब तक दिखाई नहीं है. This is the ring that he gave, and I always wanted an oval ring and a bigger size ring. So this is just. I'm always going to keep this with me because it's so इतना special. बड़ा हीरा है, bigger size ring. It's very pretty, very cute. So I think I'm going to switch between this ring and the other ring जो मुझे हम लोग जो अभी अभी जो रिंग ले रहे हो प्रॉपर्ली इसके हिसाब से एकदम जो ये लाइफ टाइम पहने और जिसको इरिटेट ना हो वो उसको देख के। That is true. ये वैसे कुछ अभी अपने लिए रिंग लेगी तो वो भी सॉर्टेड है। That's the story time, and I really hope you guys enjoyed watching this. And sorry if I was a bit conscious. This is my first time, so please. He'll get better. Forgive Vlogs me. में I think you will get to understand his vibe a lot more. And we अभी, vlogged a lot, like बहुत सारे incidences I from. hope you like our content. हाँ मुझे और एक गंदी आदत है कट करने की, so ignore that also. Because getting the parents to meet, पूरा telling our friends, सब कुछ सब मतलब पूरा कुछ। everything is vlogged. Yes. So जितना हम लोग कर सकते थे। हाँ, so we vlogged all that. We want to show that to you, and you guys will love it too. So yeah, this was the story time. We really hope you guys enjoyed watching this. If you did, give it a big fat thumbs up. Subscribe to our channel. Hit the notification bell. Thank you for watching. We'll see you soon. खत्म हो गया guys. Special treatment. समय समाप्त. So यार, लेके इधर. how did you like the wine decor? Very cute. Exactly how I would have wanted. With my beautiful flowers. Guys, I'm engaged. और ये मेरा final ring नहीं है, मेरा दूसरा ring आने वाला है.